Assalamu alaikum, starting with the name of Allah, the most gracious, most merciful. I am Iram Tariq. I am CEO of Exodus Green, a climate tech company, and I am ambassador of En-ROAD Climate Program. It is MIT Ceylon program, and today we are here to discuss a very important topic. And this workshop is we are conducting this workshop under En-ROADS. So as you all know that climate change is right now affecting us, and how we are fueling this climate change by making or taking bad decisions, and by adopting the policies which are not made for us. So let's begin our workshop. This is the first comprehensive workshop of En-ROADS, in which we will discuss that how the rising temperature affecting our food security, and how the supply chains are, how we can make better policies to make sustainable supply chain for the future. Okay, now let's, I'm going to share my slides with you. Okay, as I told you that it's the MIT Sustainability Management Initiative, and this program is developed by Climate Interactive, and I am the ambassador of this program. Okay, as we all know that climate change is not only an environmental issue, it is fundamentally a food security and economic sustainability issue. Today, we will explore how climate policies affect agriculture, food production, and supply chains using an interactive tool. As you know, that research shows that showing people research does not work. Professor Sterman from MIT Ceylon said that showing research to the people doesn't work. This session is bilingual, and we will try our best कि सब लोगों को मुश्किल सी साइंस जो है वो क्लाइमेट चेंज की वो समझ आ सके. As you know that the events are reactive and responsive when they जब वो अपने उसके पीक के ऊपर आते हैं. But before that, the जो events हैं, they are adaptive, proactive, and the patterns of behavior and systematic structure mindset, they all develop the events which after few time जो हमें स्क्रीन पे या जो हमें इफेक्ट करते हैं, जो हमें नजर आते हैं. ठीक है. So this is the, you can say the this is the chain, or this is the way in which the things develop. And now we will take the example of a bathtub. Carbon dioxide in the atmosphere is just like a bathtub, and we are pouring emissions. हम emissions उसमें जो है वो डाले जा रहे हैं, और जो removal का हमारे पास mechanism है, जो net removal है, वो बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से इस diagram में हमको नजर आ रहा है. Along with that, that stabilizing atmospheric greenhouse gas levels required a substantial drop in global emissions, and global emissions reductions should stabilize greenhouse gas concentration, slow temperature increase, and moderate sea levels rise, and other risks. This is the you can say the common thing now, right now. अभी जो हम लोग जिस उसमें हैं, जिस लेवल पे हैं, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हैं, ये चीज अब हम जो है वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक जो है वो हम समझ रहे हैं. But as you know that as IPCC the international जो है एक पैनल है जिसकी रिपोर्ट जो है वो हमें बताती है कि छोटी छोटी चीजें जो थी, जो हमारी ड्राई लैंड वाटर स्कैरिटी थी, सॉइल इरोजन्स थी, वेजिटेशन लॉस, wildfire damage, or permafrost degradation, tropical crop yield decline, food supply, और instabilities जो थी, वो
स्टार्टिंग जो इंडस्ट्रियल एज जब स्टार्ट हुई थी उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल थी। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो हैं वो सिग्निफिकेंट उस लेवल पे पहुंची, और अब जो है वो उस लेवल पे पहुंच चुकी हुई हैं जिस लेवल पे वो हमें अच्छे तरीके से जो है वो क्या कर रही हैं, रिस्पॉन्स कर रही हैं। नॉट ओनली दे आर रिस्पॉन्सिंग अस, दे आर हमारी इकोनॉमीज को और हमारी जो आप कह लो कि हमारी जो फ्यूचर में हमने कोई भी पॉलिसी बनानी है उसमें जो क्लाइमेट चेंज है वो एक मेजर उसके एक मेजर फिनोमिनन के तौर पे जो है वो आपके सामने जो है वो खड़ा होता है। तो व्हाट इज एन रोड? एन रोड जो है, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ टूल, और इट्स अ पावरफुल सिमुलेशन टूल for understanding, because we all are not scientists. We don't have the understanding of science, but the climate change is the science. Climate change is the pure science. So how we can understand that science? So, and roads make a simulation tool for understanding the impact of this climate change for decision makers and for policies and for investment that have the greater impact when you understand it, and when you can model something by using this tool. So you know that when we start making the policy related to the climate change, we have to address the population and economy, energy demand, and in energy supply. Along with that, other climatic things, and we have to focus on the economies. We have to focus on the capacity of the market, and different scenarios. They are all together linked with each other when we shape some climate policy. So this is the structure of the En-ROADS, and En-ROADS helps you in, you can say, the shaping up your policies. As today we will discuss food security and supply chains, and later we can also discuss other things as well, right? So when we talk about mitigation and adaptation, जब भी हम mitigation और adaptation की बात करते हैं, there are shared socio-economic pathways, right? So this is something very difficult, right? ये चीजें जो हैं कि we have to focus on the fossil fuel, we have to focus on the regional rivalry, right? We have sustainability issues, and there are so many other things जो हमें अपनी हमारी पॉलिसी को शेप अप करने में जो है वो क्या करती है, हमें इन सारी चीजों को अपने उसमें जो है वो रखना पड़ता है, अपने ध्यान में रखना पड़ता है. And along with that, right now, presently, we are so very much focused on greenhouse gas emissions, that how greenhouse gas emissions, how we can mitigate greenhouse gas emissions. हमें different किस्म के programs, just different किस्म के जो है वो practical programs जो हैं वो बनाने हैं, जिसमें हम क्या करें, ग्रीन हाउस गैस emissions को जो है वो address कर सकें, and we can only achieve the goal until or unless we can know the real science behind the scene. जब हमें ये सब पता होगा तभी हम पता नहीं माशरान को प्लीज अपने माइक जो है वो कर दें. Okay, simply food security means that all people at all time have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meet their dietary needs and preferences for an active and healthy life. Right? So this is the simple definition of the food security. But food security is in actual meant for availability. We have enough food to produce and supply, assess, utilization, and sustainability and stability rather. And altogether, this is called the you can say the infrastructure of this total supply chain of the food. So climate change, as you know, all know that climate change directly
threaten food security by affecting crop yield, livestock health, water availability, and food distribution system. So now I'm going to share, there's a poll in the chat. Kindly just click at the poll and just uh, uh, I will also share this poll with you here on the screen and go for the poll so that हम ये चीज establish कर सकें कि इस वर्कशॉप के शुरू में स्टार्ट में जो आपका माइंड जो था वो किस तरीके से चीजों को लेता था, किस तरीके से आप लोग जो है वो सोचते थे, एंड एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप जो हम ये पोल जो है ये दोबारा से जो है वो कंडक्ट करेंगे, जिसमें जो है वो हम देखेंगे कि क्या चीजें जो हैं आपके माइंड में, क्या चीजें जो हैं वो आपने जो है वो यानी कि इससे इस वर्कशॉप के एंड में देखेंगे कि क्या आपने लर्न किया है। ठीक है, दिस इज द पोल, काइंडली गो टू योर चैट बॉक्स एंड open the poll. This is the first question. Which climate impact concern you most for food system? This is the live poll. Just open the chat box. जो आपका चैट बॉक्स है उसको खोलें, उसमें जो है आपको rising temperature affecting crop yield, supply chain, flooding. Just start the poll. हेलो इरशाद साहब, ये पोल विजिबल है? Okay, second question is which part of the food's supply chain is most vulnerable to climate change? Production, storage, transportation, distribution, or all? And the third question is which of the following do you think is the most effective climate solution? Renewable energy transition, sustainable agriculture practices, forest protection and land use management, carbon pricing. Which one is the most effective climate solution for you? These are the 4 questions. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, आप लिंक को क्लिक करेंगे, लिंक खुल जाएगा और आप लिंक में जो है वो इसको आंसर जो है वो करें। Okay, now I'm going to start the workshop. I'm going to stop sharing this poll. Okay. Is this screen is visible to you? Kindly please respond or answer.
Is the screen is visible? आपको screen visible है? Kindly unmute your mic, say yes or no, so I can start. Okay. This is En-ROAD Climate Simulator, and today, as you know, that this model shows how different policy decisions affect global temperature, emissions, and economic system up to the end of this century. First of all, I will introduce the this simulator. This simulator is in 20 languages, right? And here is the temperature plus 3.3 degrees Celsius. This is the temperature. It means that if we never take any proper action, or if we just focused on greenwashing, then at the end of the century, this world will not be the place where we can survive. So first of all, there is the graphs. There are so many graphs you can show. We can show to you to consider it, and the entire science is behind these graphs. These are not the you can say कि just it's not just like a game, कोई ऐसी गेम है कि जिसमें बस आपने बच्चों की तरह जो है वो इसको ट्रीट करना है कि यहाँ पे कलरफुल चीजें आ गई, बल्कि इन एक्चुअल दिस मॉडल आप shows you कि किस तरह से आपने पॉलिसी जो है ना वो शेप अप करनी है, कीपिंग इन व्यू ऑफ द सिनेरियोज लाइक एनर्जी सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री, nuclear, along with that carbon dioxide removal and other greenhouse gases. You know that the agriculture emission, deforestation, how these scenarios real time जो है वो इस डैशबोर्ड में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ये सिनेरियोज जो है वो क्या करते हैं, आपको इफेक्ट करते हैं. सो देयर इज द ग्लोबल सोर्स ऑफ प्राइमरी एनर्जी. So each slider represent, these are the slider, this is the coal, this is when we move sliders from here to here, then definitely you can notice the rise and fall in the temperature. This is the this dark portion of the graph is coal, then oil, then gas, then renewable energy, then the bioenergy, and here is the greenhouse gas net emissions. That what happen if we reduce the coal, what happen if we reduce the oil, what happen if we reduce the natural gas, use of natural gas, oil or coal, and we increase renewable energy, and we increase energy efficiency. The result is in the, what is the result? Result is in the decrease in temperature. So what is our main topic today? We are here to discuss that how we address the rising temperature, and rising temperature is fueling the climate change, and how we can make policies that effectively impact climate change, and how we can move towards the real and natural solutions for this problem. So first of all, now we will start this with impacts. First impact is the, we will go, we will just click here in the graphs. We will go to the impact. We will select temperature change. Okay. So this is the temperature change. Temperature change. Under temperature change, there are so many things
we can discuss. So what happened? This is the temperature change by location. Okay, I am going to larger the view. इसको मैं बड़ा करती हूँ, ठीक है? So right now we are in Lahore, Pakistan. We will write here Lahore, Pakistan, Punjab. Okay. We will, okay. Now, different region of the globe is visible now with the name that here is the, where is the Lahore? I just, here is the Pakistan, here is the India, right? This is Asia. So what happened at the end of the century, our globe, जो हमारी globe की जो हालत हो जाएगी, वो just I'm going to minimize it. So the regions, आपको कुछ रीजन्स बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहे हैं, वहां पे 6.1 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाएगा. ऑन द अदर हैंड 4.4 डिग्री सेल्सियस. बट अगर इस स्लाइडर को हम यहाँ पे लेके जाएं, अर्ली 2000 में लेके जाएं, तो सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट, राइट? इट इज 1.3 डिग्री सेल्सियस बाय 2000 rather, right? एंड जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता गया, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होता गया, टेम्परेचर जो है वो राइज करता गया. एंड टू 2040 तक जो है, अगर हमने इस सिचुएशन को इसी तरह से हमने जाने दिया, तो हमारा जो लोकल टेम्परेचर जो टेम्परेचर एकदम से जो राइज हो रहा है, वो क्या होगा, बिल्कुल एक हमारे लिए लाइफ जो है वो बिल्कुल, लाइफ की जो एक्सेप्टेंसी जो होगी वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी. हमारे लिए लाइफ, हमारे लिए ग्लोब पे रहना पॉसिबल ही जो है वो नहीं रहेगा. ये सब चीजें हमें वैसे भी पता है, हम लोग जानते हैं कि जी इस तरह से होगा, लेकिन हमने देखना है कि किस तरह से हम चीजों को क्या करेंगे, अपने लिए जो है वो यानी कि अपनी लाइफ के लिए जो है चीजों को किस तरह से क्या करेंगे, हम वो बनाएंगे. हम कौन से काम ऐसे करेंगे जिनके करने से जो है वो हमारा ये चीजें जो हैं, ये हमारे कौन से एक्शंस हैं जो हमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में. तो हम यहाँ पे वन बाय वन जो है चीज़ों को एड्रेस जो है वो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने ग्लोबल जो एनर्जी है, उसके जो ग्लोबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उसको हमने जो है वो देखा. और उसके एस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारी जो क्रॉप न्यूट्रिशन. So here is this is the graph, right? This graph shows the crop nutrients decrease from carbon dioxide concentration. What is carbon dioxide concentration? All of you knows that okay, carbon dioxide concentration is in actual the यही polluted air और emissions और जिसे कहना चाहिए, जिसको हम स्मोक और बहुत सारी बाकी चीज़ों के साथ जो है वो क्या करते हैं, लिंक करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी हमने we are mostly focused on climate carbon credits, but we don't know what this carbon dioxide concentration in actual is. So everyone knows that. मैं इसको दोबारा से सेट करती हूँ, जो पहले सिनेरियोस थे उस पे सेट करती हूँ, और यहाँ पे हम दोबारा से इसको
न्यूट्रिएंट्स, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको जो है वो हम यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एवरीवन नोज दैट फ्यूल जो है वो इमिशंस जो है वो किससे जो है सबसे ज्यादा इमिशंस जो इस वक्त हमारे इर्द गिर्द जो जनरेट हो रही हैं वो किससे हो रही हैं? वो डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल से हो रही हैं। ठीक है, so this is the current scenario today. 1.5% of the crop nutrients are affected by the climate change, or you can say increasing carbon dioxide concentration. Then same is the case with wheat, rice, soybean. These four are the basic you can say the crops हैं जो कि हमारी फूड के साथ जो है वो रिलेटेड है। सो व्हाट एक्शंस वी हैव टू टेक? अगर हमने इन सब चीज़ों को इसी तरह से जाने दिया, हमने एमिशंस को इसी तरह से इंक्रीज होने दिया और टेम्परेचर को इसी तरह से बढ़ने दिया, तो एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी द रिजल्ट इज 3.3 डिग्री सेल्सियस, यानी वो टेम्परेचर आ जाएगा जिसका भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको छोटा सा एक क्लिप दिखाया कि उसमें जो है वो फिर हमारी सर्वाइवल जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, अगर हम कोल को रिड्यूस करते हैं तो इधर हमने क्या किया है, यानी हमने जो हमारा फॉसिल फ्यूल था, हमारी एनर्जी सप्लाई थी, उसको हमने एड्रेस किया है। साथ ही जो है वो हमें जो हमारी ये वाला जो सेकेंड ग्राफ था उसमें हमें बेटरमेंट जो है वो नजर आई है। अलॉन्ग विद डेट हम ऑयल को जो है वो अपनी लाइफ में से थोड़ा सा निकालते हैं, तो हमें टेम्परेचर में डिक्रीज भी नजर आता है और हमें साथ ही साथ में हमें हमारी जो फूड की जो है सिचुएशंस जो है, हमारी जो ये है आपके लिए हमारी क्रॉप्स की जो सिचुएशन है वो भी हमें बेटर होती हुई नजर आती है। उसके साथ साथ अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं, ठीक है, कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्यूबवेल्स पे फोकस कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, दिस इज नॉट द डिटेल्ड वर्कशॉप, दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप जिसमें बस जस्ट थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको सिर्फ बताना है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो उनका जो है वो इम्पैक्ट जो है वो हमारी फूड पे और हमारी सप्लाई चेन दोनों पे होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। एंड आफ्टर रमजान आज जो है वो डेफिनेटली आई एम विद रोजा एज वेल, और उसके बाद जो है आफ्टर रमजान हम इस पे एक जिससे कहना चाहिए पूरा एक कंप्रिहेंसिव किस्म का कोर्स जो है वो लॉन्च करेंगे जिसमें हम वन बाय वन, क्योंकि इसमें सिर्फ जस्ट ये बता देना इट्स नॉट एनफ। डेफिनेटली वन शुड नो कि उसको अपने स्पेसिफिक कॉपरेशन में, अपनी इंस्टीट्यूट में, अपने कंपनी में किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, राइट। सो हम वी विल मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो हम रिन्यूएबल, और अभी जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन। की चीज़ों को मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये चीज़ें ऐसे हैं। इन चीज़ों को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें हमें डिफरेंट तरीके से जो है लेटर एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, द थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट, राइट। अभी जस्ट मैं आपको इन सिनेरियो से, इन स्लाइडर्स से जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि ये चीज़ें इस तरह से हैं। अच्छा, नाउ वी मूव टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंसी, मोटर्स की एनर्जी एफिशिएंसी। नो, जैसे जैसे हम ये पॉजिटिव एक्शंस लेते जा रहे हैं वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज मतलब वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को एड्रेस कर रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन। अब आप देखेंगे कुछ चीज़ों का फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। फूड सिक्योरिटी पे हम इलेक्ट्रिफिकेशन, हमने हर चीज़ इलेक्ट्रीफाई कर दी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब फिर चले हम इसको यहीं पे रखते हैं। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। अब नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस क्या है? यस, जब हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ गए हैं तो फौरन हमारा जो स्लाइडर्स है वो क्या है, वो मूव किया। अब अगर आप इधर देखें, अगर हम अब सारा कोल का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर देते हैं, हम ऑयल को भी खत्म कर देते हैं, हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाते हैं,
लेकिन तब भी हमारा जो टेम्परेचर है वो हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस पे अपने टेम्परेचर को लिमिट करना है। राइट नाउ वेयर इन द एरा ऑफ, जब हमारे वॉर्स भी शुरू हो गई हैं जिन्होंने ट्रिगर कर दिया है, जो क्लाइमेट चेंज पहले शायद 10 साल में होनी थी वो अब हो गई है, क्योंकि राइट नाउ लाहौर का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इट्स रादर ये बहुत जिसे कहना चाहिए यानी खतरनाक हद तक जो है ना वो यानी वो ड्रॉप हुआ हुआ है, राइट। तो आप इस बात पे थोड़ा सा हैरान होंगे कि हम लोग राइजिंग टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये भी क्लाइमेट का ही इम्पैक्ट है कि ये जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो नीचे इस तरह से आ रहा है। और ये बिल्कुल थोड़े अरसे तक ये जो क्लाइमेट चेंज है, स्पेशली जो टेम्परेचर की चेंज है, ये इतनी फ्लक्चुएटिंग रहेगी कि मेंटली हमारी मेंटल हेल्थ भी इससे डिस्टर्ब हो जाएगी। वो हमें नहीं पता चलेगा कि हमने गर्मियों में जिंदा रहना है कि हमने सर्दियों में जिंदा रहना है। और ये एक बीच का फेज होगा, ये एक बिल्कुल बीच का फेज होगा जो हमें जो एक एक्सट्रीम प्रोडक्शन है वेदर की, उसकी तरफ जाने से पहले ये एक बीच का जो है वो फेज होगा। एनीवेज, लेट्स हम दोबारा से अपनी उस पे आते हैं, अपनी डिस्कशन पे आते हैं, अपने इस पे आते हैं, अपने ये जो हमारा बोर्ड है इस पे आते हैं और सिमुलेटर पे। और देन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के लिए हम टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, लेकिन हम कितनी टेक्नोलॉजीज को यूज करें, लेकिन हमें 0.1% जो है वो हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हमें फायदा जो है वो 0.1% जो है वो होगा। उसके बाद हम एग्रीकल्चर इमिशंस पे आते हैं। यस, we have to focus on agriculture emission. When we talk about the food security, we have to, हमें रिन्यूएबल फायदा नहीं करेगा उतना, हमें कोल रिडक्शन, हमें ऑयल रिडक्शन फायदा नहीं करेगी। हमें क्या चीज फायदा करेगी? हमें एग्रीकल्चर इमिशंस जो है वो फायदा करेंगे। ठीक है, अब एग्रीकल्चर इमिशंस क्या है? इसकी हम अगर जब डिटेल में जाएंगे तो आपको, जब आप इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, देन यू वेल अंडरस्टैंड कि आपको पता होगा कि यूरोप में मीट और नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग हो रही है। वो वर्किंग क्या है, उसकी सारी की सारी डिटेल जो है वो डेफिनेटली हम जब एक सिर्फ सिंगल टॉपिक को इसमें जब डिस्कस करेंगे, अभी तो हम एक इंट्रोडक्टरी सा सेशन कर रहे हैं, तो देन फिर मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम लाइफ स्टॉक, फिर लाइफ स्टॉक जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ और दूसरी चीजें जो हैं वो भी जो सारी की सारी टेक्निकल डाटा है, जिनके फूड फॉर एनिमल्स हमें किस तरह से जो है हमें उस पर वर्किंग करनी है। जब हम फूड फॉर एनिमल्स पे वर्किंग करते हैं तो आप ये देखें यहाँ पे जो है एमिशंस, मीथेन एमिशंस जो है वो क्या हो जाती हैं, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम और विद द हेल्प ऑफ दिस सिमुलेटर हम लोग जो है अपने रियल सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अलॉन्ग विद डैट हम लोग वेस्ट एंड लीकेजेस पे वर्किंग करते हैं। तो मजीद हम 2.2 के उस पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, सिनेरियो पे, यानी कि मजीद जो है वो टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। अलॉन्ग विद डैट अब हम अगर यहाँ पे जो बिल्डिंग और एनर्जी एफिशिएंसी जिस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है इस पे जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा 1% जो है जो टेम्परेचर है वो बिल्डिंग एफिशिएंसी पे, जब हम बिल्डिंग एफिशिएंसी पे वर्किंग करेंगे तो हम 1% जो है उसमें हम रिडक्शन जो है टेम्परेचर में होगी। एंड अलॉन्ग विद दैट इलेक्ट्रिफिकेशन, जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आएंगे तो फिर ये अब हमारे जो हमारे शेड्स हैं, जो हमारे फूड से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, उन्हें जब अपनी पॉलिसीज बनानी है तो उनको फिर देखना है कि उन्होंने इन चीज़ों को अपनी बिल्डिंग्स को जो है मोर एफिशिएंट जो है और मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो बनाना है। और उसके बाद लास्ट जो है वो हम एक प्राइस, एक कार्बन टैक्स अगर हम ऐड करें। अब कार्बन टैक्स जो है
या कार्बन प्राइस जो है वो डेफिनेटली उन लोगों पे होगी जो कि क्या करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, और वो रूल्स एंड वो रेगुलेशंस जो फिर हम एक जैसे कहना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ ओवर एनवायरनमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ओवर सर्वाइवल, जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हम बनाएंगे। तो ये सिर्फ एक जो सिर्फ एक हमने चीज जो है अभी इसमें एड्रेस की है, और वो ये है कि हमने सिर्फ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट जो है क्रॉप की न्यूट्रिएंट डिक्रीज जो है उसको जो है वो हमने सिर्फ अभी जो है वो क्या किया है, एड्रेस किया है। बट along with that there are so many other things which are related with this, and one of them is crop yield। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा से इस सिमुलेटर को रीसेट करें, ठीक है, तो अगेन हमें इंक्रीज जो है उसी तरह से नजर आता है। और यहाँ पे अब हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की बजाय जो है अब हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस पे जो है वो जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो है वो किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, the greenhouse gas emission from energy production, from agriculture, from waste and from industry. These are the uh, 3 or 4 basic आप कह लें सेक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, जहाँ से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो हैं वो जनरेट करते हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो हैं ये क्रॉप यील्ड्स और वार्मिंग को वो डेफिनेटली इसको हम एक और सिनेरियो के साथ जो है वो रिप्लेस करते हैं, और वो है एंड दैट इज द you can say the mm, this this is the sea level rise, right? जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं वो सी लेवल राइज जो है उसको बहुत ज्यादा क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, और सी लेवल राइज डेफिनेटली जब आपकी सप्लाई चेन्स में जो आपकी मेरीन है, जो आपकी आपने एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, वो सारी की सारा जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, आपके कोस्टल एरियाज पर डिपेंड करता है। और आपको अपने कोस्टल एरियाज की सिक्योरिटी के लिए किस चीज की जरूरत है, आपको एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत है जो कि आपकी फ्यूचर में क्या करे, आपको जो फ्लड रिस्क है उससे आप क्या करें, अवॉइड करें, या आप उस फ्लड रिस्क को जो है वो कम करें। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस ग्राफ को जो है वो डिस्क्रिप्शन हाइड डिस्क्रिप्शन वी विल डेफिनेटली व्यू लार्जर। हम इसको यहाँ पे हम बिकॉज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान सो वी विल यहाँ पे हम लाहौर सॉरी कराची को जो है ना, क्योंकि कराची है हमारा कोस्टल एरिया, तो हम कराची को जो है वो यहाँ पे जो है वो हियर इज द कराची। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज करते हैं। सो नाउ यू कैन वेल आपको ये अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा कि ये हमारा एरिया जो है ये अंडर द, यहाँ पे हमें इसको हम दोबारा से थोड़ा सा यस, यहाँ पे हमें अपनी यहाँ पे बलूचिस्तान कौमी पार्क ये भी हमें विजिबल है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा यस, ओके, नाउ हियर इज द कराची। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो लैंड एट रिस्क है वो थोड़ा सा और
So this is the Port Qasim. This is the Port Qasim area. So ये वो सारी की सारी लैंड है जो एट रिस्क है. और अभी अगर हम यहाँ पे वी आर इन 2030 के उसमें आते हैं 2030. ओके, नाउ 2030 तक हमारे बहुत सारे एरियाज को अभी इतना ज्यादा खतरा नहीं है. ठीक है, दिस इज द कराची. बट अगर ये सारी चीजें अनएड्रेस्ड जाएंगी और हम प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाएंगे और हम ग्रीन वॉशिंग को ही जिसे कहना चाहिए वो मतलब हम ग्रीन वॉशिंग ही करते रहेंगे, तो एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी ये सारी का सारा हमारा लैंड जो है ये क्या हो जाएगा, ये आप कह लें कि ये इस सी लेवल राइज के जो है वो नजर हो जाएगा. और फिर हमें जो है काफी सारी चीजें जो है वो सोचना पड़ेंगी कि हमने ये बात जो है वो हमें पहले क्यों नहीं की, हमें इन सारी चीजों का पहले क्यों नहीं पता चला. अगर हमें पहले अर्ली कोई हमारा डिटेक्शन सिस्टम होता या हमारा अर्ली कोई किसी ने हमें इन चीजों के बारे में इन्फॉर्म किया होता तो डेफिनेटली वी कैन मेक बेटर पॉलिसी. और हम इस चीज से जो क्या कर सकते अपने आप को सेव कर सकते. ओके, और यहाँ पे अब हम ये हमने जब ये एरिया ये निकाल लिया अपना कराची का निकाल लिया. Now we will see that methane emissions by source, these are the energy production by agriculture, by waste, by other you can say by industry, how these things जो है ये सारी चीजें हम कौन से ऐसे एक्शंस लें जिन पे हमारी ये सारी की सारी, क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ दो काम कर रहे हैं. We are totally focused on plantation, right? So हम अगर यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन पे जाते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा. सिर्फ 1.1% जो है वो हमारा जो है वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है. और हमारा फ्यूचर जो है फ्यूचर में आने वाले रिस्क को वी कॉन्ट एड्रेस बाय जस्ट प्लांटेशन. हम प्लांट्स लगा लगा के जो क्लाइमेट चेंज है उसको एड्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर राइट नाउ ऑन द अदर एंड what we are doing, we are our focus is on energy efficiency, right? Our focus is on electrification, right? Our focus is on renewable energy, right? These are our priorities. हमारे क्लाइमेट पे वर्किंग की जो प्रायोरिटीज हैं वो ये 3-4 चीजें हैं जिन पे हमने क्या किया हुआ है, फोकस किया हुआ है. और बाय फोकसिंग ऑन these 4 things we could not address climate change. We couldn't save our food security is highly at risk if we continue to focus on only renewable energy efficiency and deforestation or forestation, whatever it is, plantation, right? We have to focus some other things. We have to think out of the box so that we can address rightly the climate change. We have to understand the climate change in actual, what in actual climate change is, right? So now if we move towards अब इस सिनेरियो में रहते हुए आप कुछ भी करते रहें, आप कार्बन प्राइस भी लगा लें, टैक्स लगा लें, सारी इंडस्ट्री को टैक्स कर दें, यू कांट सेव द यू कांट चेंज द सिचुएशन. You can't change the situation. You are still in danger. You are still in danger, right? So this is not the good situation. Now, what is the good solution? What will be the good solution? Now, we will हम ऐसा करते हैं, कुछ मुख्तलिफ चीजें करते हैं. We think out some out of the box thinking जो है वो हम करते हैं, right? And what is that out of the box thinking? Let's move few. We will move towards nature-based solutions, right? Okay, हम यहाँ से कार्बन टैक्स को भी पहले ऑफ कर देते हैं क्योंकि कार्बन टैक्स इज द वेरी गुड solution to address climate change. ठीक है, आप टैक्स लगा दें, आपको कोई मसला नहीं है. Now, we move towards nature-based solutions.
ठीक है. We move towards agriculture emissions, right? We will waste and leakages, right? Along with that, we reduce coal, right? We will go for the transport efficiency, not electrification, but efficiency, transport efficiency. Then along with that, we add renewable. ठीक है, अब आप ये देखिए renewable जो है वो 0.1%, 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से जो है वो हुआ है. And now along with that, we move towards technologies, right? We move towards technologies, electrification, oil, and now we add carbon price. So by doing this, we can save up to some extent. हम कोई सिचुएशन को किसी हद तक जो है वो क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारी बिल्डिंग एफिशिएंसी और हमारी जो बिल्डिंग्स की इलेक्ट्रिफिकेशन है वो फिर एक एडिशनल जो है वो आप क्या लेके बेनिफिट है जो हमें मिलेगा अगर हम इस तरह से जो है वो एड्रेस करेंगे, प्रॉब्लम को इस तरह से एड्रेस करेंगे, राइट. सो दिस इज द एन अदर सिनेरियो कि हम किस तरह से जो है वो अपनी फूड सिक्योरिटी को और अपनी जो है आप कह लें जो हमारी फ्यूचर की जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम सेव अभी से जो करना शुरू करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को जो है मीथेन एमिशंस को जो है वो एड्रेस करना है. और मीथेन एमिशंस को भी हमने इस तरह से एड्रेस करना है, हमने फोकस करना है एग्रीकल्चर एमिशंस पे, ठीक है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे, वेस्ट और लीकेजेस पे, और अलोंग विद दैट जो है बाकी सारी चीजें जो है वो फिर हमें क्या करेंगी, रिवॉर्ड करेंगी. जस्ट बाय इसको दोबारा से इस सिनेरियो को दोबारा से करें तो जस्ट बाय जो हमने रिन्यूएबल पे फोकस किया हुआ है और हमने इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस किया हुआ है, अलोंग विद दैट हमने जो है वो जो है ये जो है डिफॉरेस्टेशन, इस पे जो हमने ये डिफॉरेस्टेशन की हमने प्लांटेशन और डिफॉरेस्टेशन पे जो हमने फोकस किया हुआ है, इन 3-4 चीज़ों पे फोकस करने की वजह से हम जो है वो चीज़ों को हमारे पास जो एक रियल सोल्यूशन जो है वो नहीं आ सकता, राइट. नाउ अलोंग विद दैट अब हम एक और सिनेरियो जो है वो डिस्कस करेंगे, और बिकॉज ईच स्लाइड रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड पॉलिसी डिसीजन. हम लोग जो पॉलिसी बनाते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन हमें उसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ सालों के बाद जाके पता चलता है. विद द हेल्प ऑफ दिस सिमुलेटर वी कैन मेक पॉलिसी विद इन 1.5 आवर, एंड आफ्टर डेट हम लोगों को उसका इम्पैक्ट जो है वो पता चल जाता है कि जी ये पॉलिसी होगी तो इसका ये इम्पैक्ट होगा. अलॉन्ग विद डेट अगर हम यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि हमने फर्ज करेंगे हमने कोल पे टैक्स लगाना है तो हमने कितना टैक्स लगाना है, ठीक है, $66 लगाना है, $10 लगाना है, $40 लगाना है, $5 लगाना है, $28 लगाना है, हमने कितना टैक्स जो है वो लगाना है, ठीक है. फिर अगर हमने चीज़ों को सब्सिडाइज करना है तो हमने कितना किस तरह से चीज़ों को जो है वो हमने सब्सिडाइज करना है, ठीक है. किस साल से शुरू करेंगे 2021 को रीच करने में एक्सक्यूज मी, अभी काफी सारे साल हैं, राइट. वी आर इन 2026, we have almost more than 70 year, rather for 50 year or more than 50 year
ये हमने क्या करना है, 21st सेंचुरी के खत्म होने में ना अभी कोई काफी साल जो है वो पड़े हुए, इट्स 26 और 26 प्लस आई थिंक 64 years ना, आई थिंक 64। तो 64 years जो है वो अभी हमारे पास हैं। तो सो उस उन 64 years में हमने व्हाट इन एक्चुअल व्हाट पॉलिसी वी आर गोइंग टू मेड, जो कि हमें मेक रादर, जो कि हमें हमने फेज आउट करना है। अगर हमने कोल का इंफ्रास्ट्रक्चर फेज आउट करना है तो हमें कब से लेके कब तक करना है, और हमें इन सारी चीजों की जो आप कह लो कि एक रियल फ्रूट्स हैं या रियल बेनिफिट्स हैं, वो हमें कब जो है वो मिलेंगी, राइट। इसी तरह से अब हम डायरेक्ट लैंड, फॉरेस्ट्री एंड फूड पे अगर आते हैं, ठीक है, तो ये अगेन हमें जो हमारे पास लैंड अवेलेबल लैंड है उसका हमें आपको जो है वो बताता है कि जी हमने हमारे पास इतना लैंड जो है वो अवेलेबल है पर हेक्टर, मिलियंस पर हेक्टर, जो फार्मिंग के लिए हमारी ग्लोबली अवेलेबल लैंड है या एरिया है वो कितना है। अब इस एरिया में से हम इम्पैक्ट पे जाते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इम्पैक्ट। अब उस एरिया में से अगर where is the okay, here is the okay। अगर हमने आप कह लो कि अगर हमें लैंड बायो एनर्जी लगाने के लिए, हमें हार्वेस्ट बायो एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए अगर हमें लैंड चाहिए तो हमें कितनी लैंड चाहिए, ठीक है। तो उस उसको आप कह लें कि एक उस सिनेरियो को प्लान आउट करने के लिए जो है वो भी हमें जो बेसिक गाइडलाइंस जो हैं वो हमें यहीं से मिलेंगी, ठीक है। उसके लिए भी हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंट अपना सिचुएशंस जो हैं या अपने डिफरेंट पॉलिसी गाइडलाइंस जो हैं वो हम यहाँ पे सेट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमें अगर हमें हमें बेसिकली जिस चीज को एड्रेस करना है वो है हमारा टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी वजह से बाकी सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। तो हमने उस राइजिंग टेम्परेचर के इम्पैक्ट को एड्रेस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो यहाँ पे हम जहाँ पे अगर हम आप कह लें कि बायो एनर्जी को हम हार्वेस्टिंग, बायो एनर्जी की हार्वेस्टिंग शुरू कर दें, इट्स अ वेरी टेक्निकल और टॉपिक। और इसको अगर हम फॉरेस्ट एंड फार्मलैंड, इसको हम रिलेट करते हैं आप कह लें यहाँ पे जाके डिफॉरेस्टेशन एंड मेच्योर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से, ठीक है। तो वंस अगेन हम अपने सिनेरियोज को जो है वो रीशफल करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो प्रोमिनेंट इंक्रीज जो है वो नजर आता है, ठीक है। एंड वंस अगेन जब हम स्पेशली जब हम ये एग्रीकल्चर एमिशंस, ठीक है, और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, इस पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो ये जो लैंड हार्वेस्टेड फॉर बायो एनर्जी है, इसमें तो आपको कोई आप कोई हिलजुल जो है वो नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता फील होगा, ठीक है। या आप इसको नोटिस करेंगे कि जो टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन ये है कि जब हम आप कह लें कि ये डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन, और ये जो हम इसमें जो हम जो वाइल्ड फायर्स हैं, इन सबको जब हम क्या कहते हैं एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसका जो है हमारा जो इम्पैक्ट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो उस इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से
हमें इन ग्राफ्स में हमें कोई मूवमेंट जो है वो नजर नहीं आती, ठीक है। तो लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को पे करें, ठीक है, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करें और फिर हम वंस अगेन एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जाएं, तो फिर हमें इन ग्राफ्स में थोड़ा सा ड्रॉप नजर आता है, ठीक है। तो उसकी रीजन क्या है? जब हम एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ मूव करते हैं या हम रिन्यूएबल की तरफ मूव करते हैं, तो देन वी नीड लैंड, तब हमें चाहिए होता है, लैंड चाहिए होती है। या हम यहाँ पे अब डिफॉरेस्टेशन की तरफ जब जाते हैं, तो उस वक्त एकदम से ये सिनेरियो जो है बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है, और साथ ही साथ जो है हमारा टेम्परेचर जो है वो भी डाउन हो जाता है। तो ये एक इतना एक जैसे कहना चाहिए एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, बट दिस सिमुलेशन, दिस यू कैन से दिस कह लें कि ये जो एक बोर्ड है, इंटरैक्टिव एआई बेस्ड बोर्ड है, इसने इस चीज को इतना आसान बना दिया है कि विद इन नो टाइम हम डिफरेंट सेक्टर्स के लोग, जस्ट जस्ट टेक्सटाइल के लोग हैं, राइट आई एम टॉकिंग अबाउट फूड सिक्योरिटी, या जो दूसरे आप कह लें कि किसी भी सेक्टर के लोग हैं, वो बड़े आसानी के साथ जो है वो इन चीजों को जो है वो वेल अंडरस्टैंड कर देते हैं, कर सकते हैं। और आपको, आप उसी वक्त वो जो होते हैं ना एक्शंस, उसी वक्त मैटर करते हैं। हम सीरियस एक्शन उस वक्त लेंगे जब हम सीरियसली, हमें पता होगा कि कौन सी चीजें जो है ना, वो कौन से काम जो है ना वो हमें करने हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से ये एनर्जी, ये जो है कोल प्राइमरी एनर्जी, ये तो मतलब डीप रिसर्च है। हम अगेन जो है अपने इस जो है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जो है वो आते हैं। तो हम हमारा सारा का सारा फोकस जो है वो ये फेज आउट, कोल को फेज आउट करें, ऑयल को फेज आउट करें, ठीक है। हमारा प्राइमरी जो फोकस है, जिसको हम कहते हैं कि हमने एड्रेस करना है क्लाइमेट चेंज को, तो हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीजों पे ही है। और जबकि ऑन द अदर हैंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड सो मेनी स्मॉल थिंग्स। जब हम सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करते हैं, ठीक है, तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक की जो साइंस है वो हमें कभी भी समझ नहीं आ सकती जब तक हम जो है वो थोड़ी सी डीप साइंस, डीप डाइव ना करें साइंस में, ठीक है। और डीप डाइव करने के लिए किसी भी जिसे कहना चाहिए, स्पेशली क्लाइमेट साइंस में डीप डाइव करने के लिए जो एनरोड्स का ये सिमुलेटर है, इट इज वेरी गुड कि हम इससे जो है वो चीजों को जो है वो समझ सकें। अब हम एक फाइनल जिसे कहना चाहिए, हम अगर एक और सिनेरियो की तरफ जो है वो आते हैं, तो वो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो है हीट वेव्स, ठीक है। अब हीट वेव्स भी जो है ये हमारी फूड सिक्योरिटी को भी क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, और अलोंग विद डैट ये हमारी सप्लाई चेन को भी जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। अब हमारी सप्लाई चेन जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि हमारी ट्रक्स के से चीजों ने आना है, या हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी क्लाइमेट चेंज से जब वो मुतासिर होगा, तो उसके साथ साथ क्या होगा, हमारी फूड सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगी, यानी डेफिनेटली अगर लोग ही जो हैं वो मेंटली और फिजिकली अवेलेबल नहीं होंगे काम करने के लिए, तो आपको जो है वो एक जिसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं कि वी हैव टू, हमें एक सस्टेनेबल सोसाइटी और हमें एक सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है, तो वो सस्टेनेबिलिटी हम कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। तो वंस अगेन when I you can say when I reset the module, right? And when frequency of heat wave, extreme heat, when we, you can say when we, uh, mm, you can, यहाँ पे हम इसको जरा थोड़ा सा enlarge कर लेते हैं, ठीक है।
So from 1850 to 1900, there is no extreme heat waves, right? Today, after 8 years, it's out of 50 years, after 8 years, we face heat wave. This is over, and our baseline scenario is at end of this century, right? 29 years after likely extreme heat waves will likely occur in 29 years out of 50, right? It means that हर साल जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हीट वेव को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. इफ वंस अगेन अगर हमने अपनी पॉलिसीज को जो है वो अपनी पॉलिसीज में अगर हमने एक क्विक चेंज ना लेके आए और अगर हमने अपनी पॉलिसीज को नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट ना किया और हमने अपनी जो हमारी वेस्ट और लीकेजेस हैं, और इसमें वेस्ट एंड लीकेजेस में जब हम वेस्ट एंड लीकेजेस की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, हमें जो है वो इमिशंस जो हैं जिनको हम मीथेन इमिशंस कहते हैं, कि जब हम वेस्ट की इमिशंस की बात कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट इमिशंस, देन डेफिनेटली हमारा जो फोकस होता है इट इज ऑन द methane emissions. We have to reduce methane emissions. So methane emissions जो है वो किस किस तरह से जो है वो हम reduce कर सकते हैं, ठीक है? We will just हम इसको इस स्लाइडर को ओपन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि how we can address the methane leakages from energy system, right? Methane from nitrous oxide, राइट? अब साथ साथ आप टेम्परेचर में भी डिक्रीज जो है वो देखते जाए. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है, फ्रॉम नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्री, राइट? हमें ये सारी चीजें जो हैं वो क्या करनी है, एफ गैसेस, राइट, ये सब हम लोगों को करनी है. फिर हमारा स्टार्ट ईयर चले, लेट्स बिगिन फ्रॉम 2026 के हम 2026 से ही जो है वो स्टार्ट नहीं है, तो हमारा स्टार्ट ईयर जो है वो चले 2026 ही हम अपना स्टार्ट ईयर जो है वो रखते हैं. 2026 इज ओवर स्टार्ट ईयर, और हम फिर ईयर ऑफ अचीवमेंट, हम कितनी देर में इसको विद इन 30 ईयर हम इस सिनेरियो को जो है वो अचीव करेंगे. विद इन हाउ मेनी ईयर्स, 30 ईयर्स. नो, वी हैव टू, अगर हम इसको रिड्यूस करें तो हमें 10 ईयर्स में या आने वाले 10 ईयर्स में हमें जो है वो अपनी इस गोल को क्या करना है, अचीव करना है. तो सो वी सेट आवर टारगेट्स हियर and then we make our policy, and then you can say the आपको just this is the ये एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का आप कह लें कि डीप डाइव, we just deep dive the nature based solutions कि हमने करने काम कौन कौन से करने हैं. Same is the case with agriculture emissions. When we move towards agriculture emissions, and what we do now, we will open the this slider, and now we will once again methane and nitrous oxide in livestock, right? These are the actions we have to, ये काम है जो हमने करने हैं. We have to, this is the start year of over not again 2027. Now this module is suggesting that we हम जो है वो 2027 में जो है ये वर्किंग जो है ये स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, नहीं 2026 आ ही गया, राइट? So this is the, you can say the deep you can say the deep actions which we can
take to just address the rising temperature problem. And along with that, definitely we have to address the agriculture emissions. Okay. Deforestation, technological achievements, and now अब हम विदाउट, पहले तो हमने एक स्लाइडर को मूव किया और उससे जो है हमने रिजल्ट्स लिए। अब हमने सिर्फ क्या किया, डीप डाइव करके जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस किया, राइट। और उसके बाद जो है वो हमने ये रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन, बिल्डिंग एफिशिएंसी, or by applying then a portion of this is the real solution, then coal, then oil, and then by applying some carbon price, हम टेम्परेचर को 1.9 सेल्सियस पे स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं with the help of these actions. और यहाँ पे हमने क्या किया है कि अपनी वो जो हीट वेव की फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव थी उसको भी हमने 29 ईयर्स से रिड्यूस करके 13 ईयर्स पे, क्योंकि हम क्लाइमेट से वी कांट फाइट क्लाइमेट, राइट। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि रियल जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, रियल इश्यूज हैं, उनको उनकी साइंस को जान के हम उनको जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ आई एम गोइंग टू